Thank you, thank you, thank you. Very lots of thank you to my all lovely happy universe family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value lot your time. I heartily value lot your blessings, your prayers that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much being a super blessed member of my happy universe. And friends, if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher. Teaching is my profession. Teaching is my passion. Teaching is my peace. Teaching is my power. Teaching is my creation. Other than that, teaching is my greatest blessing. And how I become teacher, I'll tell you with a very lovely beautiful example and testament. Before that, please be humble, be thankful towards your existence, because still you are alive, your life is alive, your family is alive, your dreams are alive. Never give up in your life. Just be fight for your happiness, because when you just try to be yourself and you just fight for yourself, universe will attract you, universe will convey a lots of messages through your repetitive numbers. I have tell you now, but other than that, there is something unique that you have to wait. So let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. We have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind, and today is who is I am part 9, means spirit part 9. So you know what, I'm having something unique for you. I said, your school is a blessing for you. Then how I become teacher? I become a teacher through my college. Today I firstly thank you God. I glorify God. I praise God. Thank you for being a wonderful blessing for my happy universe, that God really has gifted us such a wonderful member in our my happy universe. Other than that, the person who give us opportunity to become a teacher. Thank you everyone. And our college is a blessing. How? When you never give up in your life, what reward universe is going to give you? Universe will reward you. And I dedicate this reward to my all everyone, fighter, soldier, warrior, who is just fighting with the all the conflicts of their life. Any situation, you might win everything, but never give up in your life, because when you not give up, it means you are having something, you are having everything with you. I love you all. Stay blessed, and let's know the clarity point. But before that, I wish everyone very advanced happy teachers day to all respected excellencies who are in this respected profession, because teaching creates all the professions. And when we learn something from any person, it might be from any teacher, it might be from any family member, from your parents, from any small children, everyone is a teacher. To those, we are learning something, we are gaining something, we are gaining the lessons of life. They are our real teachers. So happy teaching week to everyone, and be blessed. I love you all. Friends, ट्रॉफी, जब ज़िंदगी की लड़ाई को हम जीतते हैं या ज़िंदगी की उन सिचुएशंस पे हम जीत पा जाते हैं, तो क्या होता है, हमें रिवॉर्ड मिलता है. आप कहते हो गॉड इज़ ऑनर अस. हाउ? फिर जैसे ही हमारा एक स्कूल हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, तो हमारा कॉलेज भी हमारे लिए ब्लेसिंग होता है. और ये ट्रॉफ़ी याद दिलाती है हमें उस ब्लेसिंग की, उन गिफ्ट्स की, जिन गिफ्ट्स के थ्रू हम एज ए टीचिंग प्रोफेशन तक पहुंच सके. और टीचिंग उस प्रोफेशन से जब स्टार्ट हुआ तो वो हमारा पैशन बन गया. और रियली में ही टीचिंग से बढ़कर कोई पैशन नहीं, क्योंकि टीचिंग ही सब चीज़ों का, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबको बनाता है. रियली ना, अगर आप एक टीचर हैं तो अपने टीचर होने पे प्राउड करें. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें. आप अपनी लाइफ में जिस भी इंसान से सीखते हैं, वो हर इंसान हमारा टीचर होता है. आप तो जानते ही हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, कितना ऊंचा स्थान मिला है इन गुरुज को. तो कोई हमें स्पिरिचुअलिटी बेस पे सिखाता है, कोई हमें वर्डली तौर पे सिखाता है. भाई टीचर तो टीचर है, टीचर का स्थान तो परमात्मा से भी ऊपर है. लेकिन और टीचर को कैसा होना चाहिए?
टीचर को परमात्मा के लिए उतना ही हम्बल होना चाहिए और परमात्मा के लिए उतना ही थैंकफुल होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ट्रॉफ़ी से ये दिखाना चाहती हूँ। ये ट्रॉफ़ी है मेरे कॉलेज टाइमिंग की, जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी और हमारे कॉलेज में एक कुछ सरप्राइज़ सा प्रेजेंटेशन कुछ किया गया था, मुझे याद है पूरा अच्छे से। और आपको मैं बताऊंगी कि आप पहले से ही जीते होते हो, आप पहले से कैसे जीते होते हैं बताती हूँ आपको। और एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन देनी तो किसी और ने थी, लेकिन सडनली क्या हुआ, बाय मिस्टेक मेरी वो फ्रेंड लेट हो गई और वो लेट हो गई आने में। और उस टाइम पे हमारे ग्रुप की बारी थी, हमारे ग्रुप की टर्न आने वाली थी। और इनफैक्ट उस टाइम पे मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस टाइम से बिल्डअप हुआ था और उस टाइम पे कोई भी नहीं रेडी हो रहा था प्रेजेंट करने के लिए। मे भी हो सकता है कुछ हेजिटेशंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे एक ऐसा चैलेंज है कि शालिनी अब आप ही करोगे और उस टाइम पे जब ये बात करने की आई कि अब इसे प्रेजेंट करो, एंड इवन दो यू नेवर बिलीव ऑन दैट, विदाउट प्रैक्टिस मैंने वो चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। और मुझे आज भी याद है, मुझे उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ तो नहीं मिला था, लेकिन मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हमें हमारे कॉलेज से मिली। और हमारे कॉलेज के वो हर मेंबर जिन्होंने हमें मौका दिया एज ए टीचर काम करने का, जहाँ पे हमने सीखा। बेशक आप पैसों से तो बहुत कुछ नहीं सीखते, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप अपने एक्सपीरियंस में बढ़ने के लिए जो चीज़ें सीखते हो वो हमेशा ही सेल्फलेस होनी चाहिए। And I thank you God for wonderful college, and really thank you to our all management, our teachers, respected teachers, and my lovely respected students who always honor as a bundle of respect, always on my happy universe and always on all the social medias. Thank you so much, and I love you all and I miss you everyone. Thank you. तो फ्रेंड्स, इस ट्रॉफ़ी के थ्रू मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की भाई, मैंने कहा हर सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको हर बात को बड़े ही प्रैक्टिकल वे में, बड़े लाइव एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ, ताकि आपको लाइफ की क्लैरिटी समझ आ सके। और लाइफ की क्लैरिटी जितनी में हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने आप को समझें। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि मैंने कहा सूर्य धूप जो सच्चाई है वो कभी नहीं छुपती है। आप सच्चे हो, आप जीतोगे, लेकिन पेशेंस, और वो पेशेंस कैसे रखने हैं, जब भी हम अपने किसी भी लॉर्ड को, गॉड को, या किसी भी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में देखते हैं जिनके थ्रू हम हमेशा ही लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनसे हमें सीखने को मिलते हैं पेशेंस। हम पेशेंस भी रख लेते हैं, लेकिन अगर हम फेथफुल नहीं होते अपने पेशेंस में, तो हम तब भी नहीं जीत सकते। बिकॉज मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, गॉड लव्स मोस्ट फेथफुल पर्सन्स, नॉट टैलेंटेड। अगर आप फेथफुल हैं तो 100% फेथ में रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके फेथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, आप गिव अप करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब आप गिव अप नहीं करते हैं, आप पहले से ही जीते होते हो। क्यों मैंने ये ट्रॉफ़ी आपको दिखाई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को अपने आप में ये नहीं था कि चलो अब हमें ये चीज़ करनी है। और गॉड या कोई भी नेचर है, यूनिवर्स है, वो आपके लिए, वो आपकी जीत पहले से ही निर्धारित रखता है। मतलब कि ट्रॉफ़ी कहीं ना कहीं प्लान थी, या उनकी ओर से प्लान थी, लेकिन जब आपने उस सिचुएशन को फेस किया तो ऑटोमेटिकली ही आप जीते होते हो। तो वैसे ही हमारी लाइफ के हर एक सिचुएशंस है, बट बात ये कि हम कॉन्शियसली इतना नहीं सोचते। हम लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर आपको फेथ जो बनाना है ना, आप फेथ में ग्रो होना चाहते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हो, आप फेथ में ग्रो होना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंसेस को जोड़िए, आप छोटे छोटे टेस्टामेंट्स को जोड़िए, तो आप एक बड़ा टेस्टामेंट क्रिएट करते हो। अगर हमारी लाइफ में हम सांसें ले रहे हैं, तो ये भी एक टेस्टामेंट है। आप इस टेस्टामेंट होने के लिए लाख बार थैंक यू कीजिए। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से निकले होंगे जब आपने सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल पे इतने शायद कॉन्शियस नहीं थे, तो हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल विद योर राइट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, विद पेशेंस एंड फेथ।
ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ को एक ऐसा मिरेकुलस बनाते हैं जिसके ऊपर चलना हमें जितना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो वो हमें उभार कर एक नई पर्सनैलिटी, एक क्रशिंग होकर जो हम एक इंसान बनते हैं, क्रश आउट होकर जब निकलते हैं, देन यू विल बी वेरी मच यूनिक फ्रॉम अदर्स। और हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तो हम अपने आप में ही यूनिक है फ्रेंड्स। हम अपने आप में ही एक अलग क्रिएशन है। मैं आपको अलग क्रिएशन का एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स। आप देखते हैं दुनिया में हम किसी भी इंसान को कोई भी उपाधि देते हैं, कोई भी चीज़ का प्लेटफॉर्म देते हैं, चाहे आप किसी सेलिब्रिटी को देखिए, आप किसी किसी भी लेवल पे, सोशो इकोनॉमिक लेवल पे किसी भी पर्सन को देख लीजिए, हर एक पर्सन को अलग तरह का टैग देने वाले कौन है? हम। अरे हम तो भगवान भी बनाते हैं। मैंने कहा भगवान, अब ये कौन सी बात कह दी मैंने? अरे हम ही तो भगवान को बनाते हैं, हम ही उस इंसान को भगवान बना देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं इसका। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई इंसानों को देखा होगा जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत टफ टाइम में आपकी लाइफ में काम किया होगा, आपके टाइम पे हेल्प की होगी। शायद आप उस इंसान को भूल चुके होंगे, शायद उस इंसान के एहसान को आप भूल चुके हैं, एहसान नहीं कह सकते, उसकी सर्विंग को भूल चुके होंगे। लेकिन आपको पता है क्रिएटर, नेचर आपके किए को हमेशा याद रखता है। आप जो भी करते हो तभी तो कर्म है। हमें तो हमारे कर्म भूल जाते हैं करके, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन कर्म हमारे पास आता है वापस। वो नहीं देखता, कर्म नहीं देखता, नेचर नहीं देखती कि आप अच्छे हो या बुरे। भाई नेचर है, जो दिया है वो तो आना ही है। अब कोई भी फल है ऊपर से नीचे तो गिरना ही है, ये तो श्योरिटी है ना। भाई कोई फोर्स तो लगती है ना, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती हो। तो ऐसे ही हमारे कर्मास है, जो कुछ भी हम देते हैं वो आता है। तो हम दूसरों को टैग्स भी देते हैं, चाहे वो गरीब होने के देते हैं, चाहे वो अमीर होने के देते हैं, चाहे वो हम बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड होने के देते हैं, सब कुछ हम तो बनाते हैं। हम ही तो है 2 मिनट में गिरा देते हैं। अरे कोई मूवी एक टाइम पे इतनी हिट हो जाती है और एक टाइम पे एक मूवी इतनी फ्लॉप हो जाती है, वो क्यों होती है? भाई पहली बात, आप किसी भी पर्सन या किसी भी आर्टिस्ट की, किसी भी चीज़ की, किस चीज़ के फ़ैन होते हो? कि आप उस पर्सन की क्वालिटीज़ के फ़ैन हो सकता है पर्सनल लेवल पे आप हो सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप उनके माइंड, आप उनके टैलेंट, आप उनके उस गिफ्ट जो उनके अंदर है, आप उसके टैलेंट, उस टैलेंट के आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर जाते हो, उसके फ़ैन बन जाते हो आप। अगर आपकी कोई भी फेवरेट एक्ट्रेस, आप उनकी एक्टिंग से, आप उनकी डांसिंग से, आप उनके ड्रेसिंग स्टाइल से, आप उनकी किसी भी चीज़ की फॉलोइंग करने से, क्यों? क्योंकि उनके टैलेंट के पीछे हम भागते हैं, उनसे अट्रैक्शन के पीछे हम भागते हैं, उस अटेंशन सीकिंग नेचर या अटेंशन सीकिंग टैलेंट के पीछे हम भागते हैं। एंड वी रिस्पेक्ट एवरी वंस टैलेंट, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई गिफ्ट है। आज ये लोग यहाँ तक पहुँचे, इन्होंने अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लिया, वो चाहे किसी भी तरह के एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरे हो। क्योंकि हम हर इंसान के लाइफ की चकाचौंध को देखते हैं, हम उनके स्ट्रगल को कभी देखते ही नहीं हैं। और हो सकता है आप ऐसे के लोग सीखते भी हों। फ्रेंड्स, वन एंड ऑल, हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें अपनी लाइफ से कभी भी गिव अप नहीं करना, और हमें अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस से हमें अपने आप को अपना टीचर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पहले खुद सीखता है, अब आप पेपर में देख लीजिए, आप कभी दूसरों से चीटिंग करेंगे ना तो आप कई बार धोखे में रह जाएंगे। लेकिन जब आपने खुद पढ़ा होता है ना तो आप बड़े अच्छे से समझा सकते हो। अगर आप एक टीचर हैं, आप जब भी लेक्चर डिलीवर करते हो और आप खुद पहले गो थ्रू होकर जाते हो, आप कहते हैं पहले मैं खुद पढ़ लूँ तो मैं दूसरों को पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइफ है। जब हमने अपनी लाइफ से कुछ सीखा होगा तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। हम किसी को भी डिसअपॉइंट करने से पहले हमें अपने ऊपर काम करने की, हमें अपने लिए सोचने की, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। I wish, I pray God bless you with lots of happiness, joy, prosperity in your life. Be blessed and be happy. And one more thing friends, I want to show you. Just see, ये आज भी वैसे ही है और आपको दिख भी रहा होगा। आप जो भी काम शिद्दत से करते हैं वो आपकी लाइफ में हमेशा ही विद ब्लेसिंग परमानेंट होता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में होप ना छोड़िए और अपने आप से, अपनी ख्वाहिशों से, अपनी खुशियों से ढेर सारा अनबिलीवेबल प्यार कीजिए, क्योंकि जो अपना है वही किसी का बन सकता है। आई लव यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। चैनल आपकी खुशी का है, ये सच्चाई का, ये अच्छाई का तो मैं नहीं कहूँगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको हमारी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। लेकिन जहाँ सच्चाई है
वहाँ भीड़ नहीं होगी। लेकिन जब सच्चाई होती है, जब सच्चाई जीतती है, तो भीड़ आपके पीछे आती है। हमें भीड़ के पीछे तो नहीं चलना, लेकिन हमें सच्चाई के पीछे चलना है। तो जहाँ सत्य है वहाँ जीत है। सत्यमेव जयते। आई लव यू ऑल।